તો આપણે 9.5 ના ફોર્થ સમથી શરૂ કરવાનું છે જે x બાય y બાય x ફોર્મમાં યા x બાય y ફોર્મમાં લાવીને કરવાનું છે. આવી રીતના છે. આવી ગયા બધા આવી ગયા? પંકજ આવી ગયો? ઓકે, રેકોર્ડિંગ શરૂ થઈ ગયું. આપણે શરૂ કરીએ. એક્સરસાઇઝ 9.5 નો ફોર્થ સમ છે. x સ્ક્વેર માઇનસ y સ્ક્વેર ઇન્ટુ dx પ્લસ 2xy ઇન્ટુ dy is equal to 0. ઓકે, તો x સ્ક્વેર માઇનસ y સ્ક્વેર dx equals to minus 2xy dy. સર સ્ક્રીન શેર કરેલી તમે? नहीं भाई नहीं करा. નથી કઈ? Okay, my bad. ચલો, તો dy by dx તો x square minus y square divided by 2xy implies dy by dx is equal to ન્યુમરેટર અને ડિનોમિનેટર ને x સ્ક્વેર ડિવાઈડ કરાવો, યાની કે શું થશે? માઇનસ ની સાઇન તો બહાર છે જ. x સ્ક્વેર માઇનસ y સ્ક્વેર બાય x સ્ક્વેર divided by 2 times xy divided by x square. હવે એલસીએમ સ્પ્લિટ કરી દઈએ ઉપર ન્યુમરેટરમાં, તો શું થશે? dy by dx is equal to minus of x square ને x square, આ x square ના x square કટ થયેલા 1 થઈ જશે, minus y square by x square divided by આ x ને x cancel થઈ જશે, यानी कि it will be what? 2 times y by x. Let, હવે ખબર છે આપણે શું કરવાનું? Let y by x equals to v implies y equals to x into v. Difference with respect to x on both the side, તો dy by dx equals to x નું ડિફરન્સિએશન 1 થાય એટલે v બચે, પ્લસ x as it is, v નું ડિફરન્સિએશન થશે dv by dx. બરાબર છે? ચલો, તો implies dy by dx ની જગ્યા પર તમને શું લખશું? v plus x into dv by dx is equal to minus and બહાર છે જ 1 minus v square થઈ જશે. y, કારણ કે y by x જે છે તે શું થશે? y by x શું છે? v છે, તો y square by x square શું થશે? v square થશે, divided by 2 into y by x. y by x શું થશે? v થશે. ચલો, implies x into dv by dx એની જગ્યા પર માઇનસ અને અંદર સબસ્ટિટ્યુટ કરી દો, અરે અંદર જવા દો, તો -1 પ્લસ v સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય 2v ને આ પ્લસ v ટા જશે તો માઇનસ v થશે. આ પ્લસ v જે છે તેને ટા મોકલો તો માઇનસ v થશે. ચલો, હવે એલસીએમ લો, यानी implies x into dv by dx is equal to -1 plus v square divided by 2v. अच्छा, एलसीएम ले लिए, तो एलसीएम 2v ने 1 नो 1 नो एलसीएम 2v, अच्छा 2v into v, 2v square થઈ જશે, implies x into dv by dx is equal to શું થશે? -1 minus v square by 2v. अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने की कोशिश करिए, तो 2v ने टर्म मोकली दो, माइनस साइन कॉमन काढीने 1 प्लस v स्क्वेर ने आसाद લઈ લો, માઇનસ સાઇન કોમન તમે કાઢી છે, યાદ રહેવા દો, dx ને તા લઈ લો,
અને x ને નીચે લે ને આ dv વેરિયેબલ સેપરેબલ ફોર્મમાં આવી ગયું એટલે ઇન્ટિગ્રેટિંગ ઓન બોથ ધ સાઇડ્સ લેટ 1 plus v square equals to માનો કે એક્ઝામ્પલ z તો 2v dv is equal to dz થઈ જશે implies આ શું થશે integration of 1 upon z dz is equal to minus integration of dx by x 1 upon z નું integration શું થશે log mod z is equal to minus log mod x અને log ના અંદર તમને કીધેલું હતું કે log કરતા એક ટર્મ કરતા વધારે log ના આવે તો c ને બી log c માં કન્વર્ટ કરી દો ઈઝી પડે કન્વીનિયન્ટ પડશે તો થશે શું કે log z માઇનસ log x થાય જશે પ્લસ log x થઈ જશે ઇઝ ઇક્વલ ટુ log c હવે વર્કિંગ રૂલ ઓફ log કોમન કાઢો પ્લસ થતો તો શું થાય મલ્ટીપ્લાય થઈ જાય પ્લસ બીકમ્સ મલ્ટીપ્લાય અગર log કોમન કાઢો છો તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ શું થશે સોરી ધીસ ઇઝ x બસ ઇઝ ઇક્વલ ટુ log c log બંને સાઈડ પરથી કટ થશે z into x is equal to c but what is z z is 1 plus v square 1 plus v square into x is equal to c but what is v y by x તો y square v square છે એટલે y square by x square into x is equal to c take the LCM यानी x square plus y square divided by x square multiply by x तो છે જ is equal to c બરાબર આને આ કટ થશે એક x બચશે यानी x square plus y square divided by x is equal to c this is your solution of the differential equation બોલો કે ડાઉટ No, sir. ધ્યાન આપી રહ્યા હતા લંબો સમય ધ્યાન આપો હા, sir. રાજ પંકજ Yes, sir, no doubt. આ કેમ નથી આવ્યો नो डाउट सर શું નામ છે એનું આદિત્ય કેમ નથી આવ્યો છે નહીં આવેલો ખબર. ફિઝિક્સ કેમેસ્ટ્રીમાં આવેલો હા, sir. पता नहीं सर આવેલો. તો પછી કેમ અંદર નથી આવ્યો જો રાજ ખબર કરું આદિત્યને કેમ નથી આવ્યો Sir, પૂછું છું એક મિનિટ. 2 મિનિટ આપણે અટકીએ પૂછો જાઓ જલ્દી ફટાફટ એને હા, sir. હમ. સર એને સર લેક્ચર એનો મેસેજ મેમ લેક્ચરમાં એન્ટર કરો गुड मॉर्निंग सर मॉर्निंग कहाँ रह गया था सर वो वाईफाई सेटअप करने वाले आए थे तो अभी इसलिए लेट हो गया बराबर एक सम चला गया जरा आ गया सूरत आ गया हाँ सर कल आया 3:30 बजे अच्छा है चलो आगे बढ़े ओके आयुषी नेक्स्ट सम क्या बेटा વાંચું સર नहीं चल कहीं नहीं इक्वेशन જ તો છે હા સર પ્રોબ્લેમ સમ આવશે આના અંદર તારે વંચાવસ આમાં પ્રોબ્લેમ સમ જ નથી હા હા એક એક્સરસાઇઝ છે આના અંદર એમાં પ્રોબ્લેમ જ સમ છે હા મને 1 મિનિટ આપો હા સર
ओके, अब दिखाई दे रहा है स्क्रीन वापस ब्लैंक है? अच्छा, तो क्वेश्चन नंबर 5, एक्स स्क्वायर dy by dx is equal to x square minus 2y square plus x into y। तो अब हम ऐसा कर सकते हैं कि dy by dx इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर को वहां पे डिवाइड करवा लो, यानी एक्स स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस बाय टू एक्स वाई स्क्वायर स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। प्लस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर। तो ये दोनों तो कट हो जाएंगे और ये एक पावर नीचे बचेगा, तो इम्प्लाइज dy by dx इक्वल्स टू 1 माइनस 2 वन माइनस पाई बाय एक्स होल स्क्वायर, क्योंकि वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे y प्लस बाय एक्स वाई। बचेगा, y बाय एक्स बचेगा ना बेटा। हाँ सर, एक एक कटेगा तो। हाँ, अब करेंगे लेट y इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई बाय एक्स इक्वल्स टू v। अब धो आई उसी, तो y बाय एक्स इक्वल्स टू v मीन्स एम्प्लाइज के y इक्वल्स टू x इंटू v, डिफरेंस इन रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाय dx इज इक्वल टू x का डिफरेंशिएशन क्या आएगा पंकज? 1 आएगा, बराबर है, तो इट विल बी व्हाट 1v प्लस x एज इट इज, और v का डिफरेंशिएशन रहेगा dv बाई dx। यानी कि अब हम क्या करेंगे राज, dy बाई dx की जगह पे हम ये डालेंगे, और y कंपेयर बाई x की करेंगे इन जगह पे, शॉर्ट। हाँ, और y बाई x की जगह पे हम क्या डालेंगे, v डालेंगे, बराबर। यानी कि अब मेरा सम हो जाएगा कि v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। dy की जगह पे मैंने क्या डाला, आयुषी आदित्य, dy बाई डी एक्स की जगह पे मैंने क्या डाला, v प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, dv बाई डी एक्स सॉरी, इज इक्वल टू 1 माइनस y बाई 2 टाइम्स y बाई एक्स होल स्क्वायर, लेकिन y बाई एक्स कौन है, v है, और स्क्वायर है तो स्क्वायर, प्लस y बाई एक्स कौन है, v है। चलो ये v उधर जाएगा तो कट हो जाएगा, तो ये दोनों तो कट हो गए, यानी कि बचा क्या है कि x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v स्क्वायर बचा। अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, तो ऐसा लिखेंगे कि 1/1 माइनस 2v स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx को उधर भेजेंगे और x नीचे आ जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, वेरी गुड। अब यहाँ पे एक काम कर सकते, 2 कॉमन निकालो, यानी कि 1/2 इंटीग्रेशन, ये होगा 1/2 माइनस v स्क्वायर dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x। चलो इसको नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं, इज इक्वल टू हाफ इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/1/2 को मैं लिख सकता हूँ 1/√2 का स्क्वायर, v स्क्वायर है यानी कि v का स्क्वायर, dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx। ये किसकी फॉर्मूला रहेगी, चलो बोलो। 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर हम चर्चा कर चुके हैं, अभी इंटीग्रेशन खत्म हुआ। ये किसकी फॉर्मूला है, बोलो। हाँ सर। ये किसकी फॉर्मूला रहेगी, सर एक मिनट सर तो। 1/8 tan इनवर्स। माइनस है, कितनी बार ये चीज याद दिलाओ आप लोगों को, और अंडर रूट भी नहीं है यहाँ पे, तो 1/√2 स्क्वायर माइनस v स्क्वायर, यहाँ पे लगेगा log 1/2a इंटू log a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1/a² माइनस एक्स स्क्वायर dx की फॉर्मूला क्या रहेगी, 1/2a log mod x प्लस a या a प्लस एक्स, प्लस में तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, माइनस में प्रॉब्लम रहेगा, इसमें याद रखना है हमें, a माइनस एक्स प्लस सी। ये फॉर्मूला की नहीं है ऐसी, याद क्यों नहीं आ रही है फॉर्मूला आप लोगों को,
क्या हुआ, सन्नाटा क्यों छा गया? तो यहाँ पे देखो अब हाफ टू, यहाँ पे हाफ टू ऑलरेडी है ही, इनटू यहाँ पे ए कौन है, 1/√2, 1/2 टाइम्स ए, फॉर्मूला क्या है 1/2 टाइम्स ए, यानी 1/2 इंटू ए कौन है 1/√2, इंटू लॉग एक्स कौन है यहाँ पे, मतलब वेरिएबल कौन है, वी है, प्लस ए कौन है 1/√2, और डिवाइडेड बाई ए कौन है 1/√2 माइनस एक्स कौन है यहाँ पे वेरिएबल वी, इक्वल्स टू 1/x dx, 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग एक्स से ज्यादा लॉग वाला टर्म है तो सी को भी लॉग के फॉर्म में ले लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चलो सरस, तो ये टू, नहीं ये टू कट नहीं होगा, क्यों, बाई मिस्टेक, चलो कट कर ही देते, कट किया है तो आंसर मतलब में बचेगा 1/2√2, चलो बराबर ना? ये √2 कट हो जाएगा तो 1/2√2 बचेगा, तो ये लिखेंगे 1/2√2 लॉग व्हाट इज वी, y/x प्लस 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2 माइनस y/x इज इक्वल टू log x प्लस log c। उसको एलसीएम लेके कुछ करो यानी कि सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो, ठीक है। तो क्या होगा, एलसीएम लोगे तो क्या होगा आयुषी, तो एलसीएम आएगा 2, एलसीएम लेकर ऊपर नीचे से √2x कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये बचेगा x प्लस √2y डिवाइडेड बाई x माइनस √2y इज इक्वल टू log x प्लस log c, या log x प्लस log c, हाँ चलो ओके, ये आपका फाइनल आंसर। मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया, ये जो अंडर का जो है उस ऊपर नीचे अपने x√2 का एलसीएम लिया, x√2 कट हो जाएगा और y प्लस एक्स बाई एक्स माइनस वाई ऐसा बचेगा, मीन्स x माइनस √2y, सॉरी एलसीएम लिया, दूसरा कुछ नहीं किया। बोलो कोई डाउट? तो सिक्स सम जो है आप लोग अभी करो, देखो सिक्स सम क्या है, पीडीएफ खोलो, मैं नहीं बताऊंगा, पीडीएफ खोलो, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू √(x²) प्लस y², वाई ठीक है। स्क्वायर। हाँ चलो करो, देखो मैं आप लोगों को दे रहा हूँ 3 मिनट, या 3 मिनट में हो ही जाना चाहिए, बहुत बड़ा नहीं है, नॉर्मल है, मीडियम साइज है।
સર હા એટલે કોઈ પૂછું ચૂકવા એટલે એમ કામ જ સ્ટાર્ટ કર્યું છે ડીવાય બાય ડીએક્સ પેલું એટલે બે સ્ટેપ થઈ ગયા એના પછી પેલું શું કરવાનું ડીવાય બાય ડીએક્સ ઇક્વલ્સ ટુ dy by વાય dx અને y by x ના ફોર્મમાં લઈ આવો હા બરાબર તો y by x ના ફોર્મમાં તમે લઈ આવશો તો એને y by x ઇક્વલ ટુ v માનો y ઇક્વલ ટુ vx પછી dy by dx ની જગ્યા પર v plus x dv by dx મૂકશો હા સર आई समझ में बात હા સર થેન્ક યુ સર नहीं समझ में कुछ समझ में नहीं आया ये x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है डी वाई सॉरी माइनस वाई इंटू डी एक्स सर ये इक्वल्स वाई टू डी एक्स उस साइड लिया હા मैंने સર એ ટાઈપ કરી દીધું સર સર આવી ગયું. આવી ગયું શું આવ્યો આન્સર सर रुको टाइम दो सर रुको હા યસ સર. और dy by dx આવવું જોઈએ અંડર રૂટ ઓફ x સ્ક્વેર પ્લસ વાય સ્ક્વેર પ્લસ વાય ભાર અને ડિવાઇડેડ બાય x આ dy by dx આવવું જોઈએ તમારે રાઈટ છે सर वो બધાનું मैंने वाई बाई एक्स को थोड़ा अलग अलग करके किया યસ हुआ है સર. मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर ये आना चाहिए ये आएगा तो इजी पड़ेगा जिससे आप लोग उसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड कर लो डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x ऐसा होना चाहिए તો બે સ્ટેપ લગીને ઠીક હતું પછી ગડબડ શું થયું બે સ્ટેપ લગીને બરાબર થયું सर देखो मैंने कहा था वाई बाई एक्स को मैंने वी लिया फिर वो डेरिवेट किया जो भी आंसर है दोनों को कंपेयर कर दिया वी वी कट हुआ तो अपना आया वीवी कट तो डायरेक्टली कैसे होगा बेटा इसके अंदर सर हो जाएगा डीवाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हाँ प्लस चलो वाई चलो हाँ, स्क्वायर बराबर 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 हाँ फिर तो आया एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वी तो वो वी वी कट हुआ एक्स डी वी हाँ बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स अब ये एक्स इधर गया तो नीचे एक्स स्क्वायर आ गया अब वो करना है इंटीग्रेट करना है वहां से बाकी है सर हम्म, सर मेरा आंसर कुछ y प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू सी एक्स स्क्वायर ऐसा आया. हम्म, लॉग वो किया उसके बाद. ठीक है बराबर आदित्य पंकज पंकज तो कहीं बोली नहीं रहो पंकज यस सर क्या हुआ कहाँ पे पहुंचे डिफरेंशिएशन हो गया इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करना है बेटा सर लेकिन
चलो बहुत टाइम हो गया, समझा देता हूँ यहाँ से। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कराएंगे x से, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, डिवाइडिंग आप मैंने फोन उठाओ ऊपर से 2 मिनट। हाँ सर। ओए अब स्कूल खुलेगी? अभी फिलहाल तो मैं मिनिस्टर हूँ नहीं कोई भी इंडिया का जो बताता है स्कूल खुलेगी कि नहीं। नहीं रे, ऐसे केसेस बढ़ रहे हैं तो नहीं खुलेगी। खुलेगी खुलेगी। नहीं। वो अमेरिका वाला किस्सा सुना ही होगा। क्या वाला? 97,000 2 हफ्ते स्कूल खुली, सिर्फ 97,000 बच्चों को 2 कोरोना हफ्ते हो में गया। से। अगर हाँ, पर अपने इंडिया के सपने को क्या कोई कर सकता है? पर रिस्क कौन लेगा? क्या कोरोना मतलब बोलेगा ओ भाई इंडिया है मैं नहीं आऊंगा यार, ऐसा बात तो नहीं करते यार। नहीं, ये आना तो आयुषी है ना, मुझे पागल हो रही है स्कूल स्कूल खुलने के खुलने चक्कर में। स्कूल तो सबको खुलवानी है पर ये ऐसे मर के नहीं। पर इसको नहीं, भी हल्के में नहीं ले सकते ना। हल्के में नहीं लगते, पर अभी क्या स्कूल चालू होने वाले तो होने वाले हैं, फिर क्या कर सकते हैं। वही तो बात है, नहीं होने वाली है जाता पागल। पर अपने किसने बोला 1 सितंबर से चालू हो रही है? हो तो अब नहीं होगी, लिख के दे रहा हूँ। पता चलेगा। ऐसा मत बोलो यार, अपने सर टीचर को नहीं पसंद आएगा। नहीं पसंद आने की बात नहीं है पागल, जो होने वाला वो बता रहा हूँ। देखते हैं जो होगा वो ऊपर वाले। यहाँ पसंद ना पसंद कहाँ से आया? कि बच्चे स्कूल कैसे नहीं है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग वापस। अच्छा सॉरी। शाम हो गया, क्या बातें चल रही थी? सर पकड़ चलो देते स्कूल खुलेगा कि तो नहीं? स्कूल 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 खुलेगा कि नहीं, ये 2020 का सबसे बड़ा क्वेश्चन है, स्कूल खुलेगा कि नहीं। हाँ सर, यस 7 करोड़ का सवाल है। हाँ, 60 करोड़ तो बहुत कम हो गया। ये अपनी पॉपुलेशन कितने का है? 1 करोड़ 30 अरे 100 करोड़ 135 है ना, बस 135 करोड़ का सवाल है ये। चलो कुछ नहीं कर सकते इसके बारे में, ना आपके हाथ में है ना मेरे हाथ में है, किसी के भी हाथ में नहीं है। अब साइंटिस्ट के हाथ में है, वो लोग बस एंटीडोट बना ले तो अपना काम शुरू हो जाएगा। यस सर। सर 21 में तो था जैसे 20 में तो नहीं 20 में। हाँ आयुषी बनाएगी ना एंटीडोट। हाँ मैं अभी जा रही हूँ, सब पागल हो जाएंगे। आयुषी ने बायोलॉजी लिया होता तो कुछ हम भरोसा कर सकते थे क्या बोला ना हाँ आयुषी बोला। सर। तो उसने मैथ्स ले लिया। आयुषी हर चीज आपके वजह से ही होती, देखा। आपने भी बायोलॉजी लिया होता तो टेंशन नहीं होता हमें। हर चीज का रीजन है वो। हर चीज का रीजन है, हर चीज का रीजन। सर कंफर्म। डिवाइडिंग डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x।
तो dy बाई डी एक्स तो अपनी जगह पे है ही बेचारा, इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई, उसको डिवाइड करेंगे न्यूमरेटर को x से और डिनोमिनेटर को भी x से डिवाइड कराएंगे, तो ये दोनों तो कट हो गए, तो देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अच्छा अब एलसीएम को स्प्लिट करवा लो पंकज, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स प्लस वाई बाई एक्स, ये इसको भी डिवाइड करेगा, ये इसको भी डिवाइड करेगा, ये बचपन से करते आए हैं किंडर गार्डन से, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू, अब ये किंडर गार्डन से ये भी करते आए कि अगर किसी नंबर को या किसी वेरिएबल को भी अगर आप अंडर रूट में डालते हो स्क्वायर करके डालना पड़ता है, यानी कि अब ये हो जाएगा x अंदर जाएगा, तो कैसे करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपनी जगह पे है ही, अब ये x उसको डिवाइड करने के लिए अंदर भेज रहे, तो वो स्क्वायर होके जाएगा, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक मैथमेटिक्स है आयुषी। तो अब ये एलसीएम वापस स्प्लिट करोगे, तो ये एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कट करेंगे ना, ठीक है ना, तो dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर के अनुसार 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई बाई एक्स, अब यहां से हम करेंगे वाई बाई एक्स के फॉर्म में आ गया, तो हम यहां से करेंगे लेट वाई बाई एक्स इक्वल्स टू वी, implies y equals to x into v, implies dy by dx equals to v as it is, x का डिफरेंशिएशन 1 प्लस x as it is और v का डिफरेंशिएशन dy by dx। चलो तो dy by dx की जगह पे हम क्या डालेंगे, ये महाशय को, और y यहाँ पे y by x जहाँ पे हो वहां पे क्या डालेंगे, v डालेंगे, यानी कि होगा v प्लस x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वाई बाई वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर यानी कि क्या लिखेंगे, वी स्क्वायर, क्यों, क्योंकि हमने माना है कि वाई बाई एक्स इक्वल टू वी है, तो वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर क्या होगा, वी स्क्वायर, प्लस वाई बाई एक्स क्या माना है, वी माना है, चलो ये वी उधर जाएगा तो कट हो जाएगा, यानी कि x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर। चलो तो अंडर रूट ऑफ 1 प्लस वी स्क्वायर नीचे आ जाएगा, डी वी अपनी जगह पे है, ये dx उधर चला जाएगा आयुषी बेन, और x जो है नीचे चला जाएगा, इन वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया, ठीक है, हाँ आ गया, तो ये इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर की फॉर्मूला कोई बोल सकेगा क्या आएगा, log x प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, है ना, यही फॉर्मूला है ना, नहीं, log सॉरी, अरे राज मैं क्या कह रहा हूँ, इसकी फॉर्मूला बोलो, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला बोलो, राज, कहाँ गया राज, कहाँ गया, है तो सही, राज बोल क्यों नहीं रहा है, राज चले गए, सो गए, कहाँ हो, फोन पे बात कर रहे हो, सर नेट, हाँ बोलो, चलो अंडर रूट ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्मूला लिख के रखो, चलो पंकज, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, sin inverse x by a plus c. वेरी गुड,
तो राज आपका आंसर कैसे आया? आपको फॉर्मूला तो पता नहीं है, तो आंसर कैसे आ गया आपका? मुझे वो नहीं समझ में आया। ना मुझे लिख के दे रहे हो, ना कुछ कर रहे हो, ना बोल रहे हो। फॉर्मूला पता नहीं है, तो फॉर्मूला नहीं पता तो आंसर कैसे आया? कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। ऐसे कैसे चलेगा? सर मैं यहीं पे अटक गया हूँ, इसीलिए मैं हाँ आपको बोला कि करा। हाँ, तो फॉर्मूला है बेटा, बस और कुछ नहीं है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स हो। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना। ये फॉर्मूला क्या है? लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस सी, ये फॉर्मूला है। अब ये फॉर्मूला अगर हम यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं तो ए कौन है? 1 है, और वेरिएबल कौन है? वी है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। तो ये फॉर्मूला डालो, ये फॉर्मूला डालो, तो क्या होगा? लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सॉरी, वेरिएबल यहाँ पे अपना वी है। ठीक है, ओके, इज इक्वल टू लॉग मॉड एक्स प्लस लॉग सी। चलो, अब v की जगह पे क्या जानेंगे? y बाय एक्स, क्यू है ही, v की जगह पे हमने y बाय एक्स माना हुआ है, इज इक्वल टू वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखोगे हमें पता है वर्किंग रूल के, लॉग कॉमन निकालोगे तो प्लस क्या बन जाएगा? मल्टीप्लाई। लॉग दोनों साइड पे इक्वल में से कट हो जाएगा, यानी कि अपना फाइनल आंसर क्या बचेगा? y बाई एक्स प्लस, यहाँ पे अंडर रूट के अंदर पंकज क्या करेंगे? एलसीएम निकाल लेंगे बेटा, तो क्या होगा? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स, इज इक्वल टू लॉग लॉग तो कट हो गया, यानी एक्स इंटू सी। एलसीएम जो है वो तो एक्स ही है, यानी कि वाई प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एलसीएम लेने के अंडर रूट के अंदर एलसीएम लिया था ना, इज इक्वल टू एक्स इंटू सी। इस भाईजान को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो एलसीएम लेने के बाद, तो y प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू सी, ये आपका फाइनल आंसर। तो फॉर्मूला का कमाल है भाई, फॉर्मूला नहीं आती होगी तो आंसर नहीं आएगा, और फॉर्मूला नहीं आती फिर भी आंसर आ रहा है, तो एक चमत्कार से कम नहीं है। बड़ा चलो, इतना ही कहूंगा, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। चलो क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? लंबा क्वेश्चन है। बड़ा सा क्वेश्चन है। चलो सरस, तो x इंटू कॉस वाई बाय एक्स प्लस वाई इंटू साइन वाई बाय एक्स इंटू वाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई इंटू साइन वाई बाय एक्स माइनस माइनस एक्स कॉस वाई बाय एक्स एक्स कॉस वाई बाय एक्स इंटू एक्स इज इंटू डी वाई। डी वाई। चलो, तो पहले तो क्या करेंगे? डिवाइडिंग बाई एक्स ऑन बोथ द साइड्स, डिवाइडिंग बाई एक्स ऑन बोथ द साइड्स। ये सम जो अभी हम कर रहे हैं ना, ये बोर्ड पे कराए ना, बोर्ड पे तो सबसे ज्यादा समझ में आएंगे, लेकिन अफसोस करो ना। સર अब પણ इसमें આપણે સ્કૂલે લગે તો ડીઓ વાળાને થોડી ખબર પડે. मासूम से बच्चू मारो। वो मासूम बच्चों से भाई।
ની થાય દીકરા, અવરું ના થાય. જ્યાં સુધી ગવર્મેન્ટ ગ્રીન સિગ્નલ ના આપે ત્યાં સુધી આપણાથી એવું રિસ્ક લેવાય નહીં. બચ્ચાઓની લાઈફ સાથે બી તો રિસ્ક થઈ જાય ને ભાઈ. ચાલો, જે છે તે છે. આ સમના અંદર જો બોર્ડ પર હોય ને તો મસ્ત મોટા રાઇટિંગ થી તમને સમજાવું કે જો આમ છે આમ છે આમ છે, અને મેં આ બંને સાઈડ પરથી x થી ડિવાઈડ કરાવું છું તો x કેન્સલ થઈ જશે બહાર, અને પેલું y/x થશે. તો આ બહુ ફરક પડી જાય. ઇનફેક્ટ વાયસી બી નહીં, એક્સ થી બી ડિવાઈડ નથી કરાવવાનું, એક્સ સ્ક્વેર થી કરાવવું પડશે. માય બેડ. તો થશે ને, તો મિલાપ થશે. તો આમ પણ ના સમજ પડે તો જો આપણે હજી એક વસ્તુ કરી શકીએ, હજી થોડું સમજ પડે એના માટે આવું કરીએ છીએ. કરવાનું તો છે જ આ, પણ આપણે અને હજી અમુક સમજ કરીએ કે આપણે પહેલા ડીવાય બાય ડીએક્સ ના ફોર્મમાં લઈ આવે. તો યા ડીવાય કા છે, યા ડીવાય છે ને આ ડીએક્સ. તો ડીએક્સ નીચે લઈ લો, ડીવાય ટુ ની જગા પર છે જ. તો શું થશે? ડીવાય બાય ડીએક્સ ઇક્વલ્સ ટુ, આ રીતના બી કરાય. હવે ડીવાય ની જગ્યા પર છે તો આ જ ડીવાય સાથે જે મલ્ટીપ્લાય થતો જે પૂરો ટર્મ છે ને, બરાબર, એ તો મારા રાઇટિંગમાં તમને શું સમજ પડતી હશે, y ઇન્ટુ સાઇન y બાય એક્સ માઇનસ એક્સ ઇન્ટુ કોસ y બાય એક્સ ઇન્ટુ એક્સ, એ પૂરો ટર્મ નીચે જશે. તો અને આ જે ડીએક્સ સાથે જો મલ્ટીપ્લાય થતો ટર્મ જે છે, એક્સ ઇન્ટુ કોસ y બાય એક્સ પ્લસ y સાઇન y બાય એક્સ ઇન્ટુ y, એ ઉપર રહેશે. તમે લખીએ એક્સ કોસ y બાય એક્સ પ્લસ y સાઇન y બાય એક્સ. જગા નથી, જગાની બી અછત થઈ જાય છે આમાં. dy by dx equals to x cos y by x plus y sin y by x. ब्रैकेट ओवर, और उसके साथ बाहर क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, y डिवाइडेड बाय, ये ब्रैकेट नीचे जाएगी, y sin y by x माइनस x cos y by x मल्टीप्लाई बाय बाहर क्या है, x. यहाँ पे बराबर दिखाई नहीं दे रहा, उसको रब करके वापस लिखते हैं. ठीक है, चल. Now
dividing numerator and denominator by x square. આમાં x સ્ક્વેર ડિવાઈડ કરાવશું તો એક x નીચે બચે છે તો બરાબર છે. ઓકે તો આપણે શું કરીએ ને આ y તો બહાર છે જ ડિવાઈડ બાય x સ્ક્વેર છે ચલો ડિવાઈડ બાય x સ્ક્વેર x into cos y by x plus y sin y by x divided by x upon x square ન્યુમેરેટર અને ડિનોમિનેટર બંનેને x સ્ક્વેર ડિવાઈડ કરાવે છે y into sin y by x minus x cos y by x આમ થશે. હવે તમે જો मैं आम કરી શકું ન્યુમેરેટર ના અંદર ધ્યાન આપજો થોડોક લંબો સમ છે ધ્યાન આપજો પ્લીઝ y by x સ્ક્વેર છે ને એક x ને y by x સ્ક્વેર છે ને તો y by x રાખું છું અને એક x ને અંડર મલ્ટીપ્લાય કરાવું છું 1 by x ને તો 1 by x ને મેં અંડર મલ્ટીપ્લાય કરાવું તો x by x શું થઈ જશે કેન્સલ થઈ જશે બરાબર ઇન્ટુ cos y by x plus y by x into sin y by x bracket over divided by આના અંદર બી શું રહેશે આ x સ્ક્વેર ને x કટ 1 by x બચશે આ 1 by x ને અંદર બ્રેકેટમાં મલ્ટીપ્લાય કરાય એટલે શું થશે y by x into sin y by x माइनस ये x अंदर जाएगा x x कैंसिल हो जाएगा cos y by x बचेगा फिर भी एक स्टेप लिख लेता हूँ कि आप लोगों को कुछ कंफ्यूजन ना हो कि ये कहाँ से कट हो गया चल तो ये यहाँ पे x x कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे भी x x कैंसिल हो जाएगा ऐसा हो गया तो हम यहाँ से करेंगे कि लेट y by x equals to v implies y equal to x into implies कि dy by dx equals to v as it is x का differentiation 1 plus x as it is implicit function rule dv by dx. तो अब dy by dx की जगह पे क्या डालेंगे v plus x into dy by dx ये डालेंगे और y by x की जगह पे हम क्या डालेंगे v डालेंगे तो जहां जहां y by x दिखाई दे वहां वहां v डालते रहो और dy by dx की जगह पे क्या डालेंगे ये ब्रैकेट वाला टर्म v plus x into dv by dx तो implies dy by dx की जगह पे वापस क्या रहो क्या लिखेंगे v plus x dv by dx is equal to y by x की जगह पे क्या माना है हमने v into cos y by x यानी कि cos v प्लस y by x क्या है v इंटू साइन y by x यानी कि साइन v डिवाइडेड बाय y by x इंटू साइन y by x क्या है v इंटू साइन v माइनस cos y by x क्या है cos v बोलो ये स्टेप तक कुछ समझ में ना आए तो पूछो आ गया सर एक बार रिवाइज कर ले अगर गलती से आप लोग कोई चले गए हो फोन पे बात कर रहे हो नहीं गेम सर खेल रहे हो तो सर फोन है ही नहीं लैपटॉप में पढ़ते अच्छा नहीं तो लैपटॉप पे पढ़ रहे हो तो फोन आ सकता है ना ऐसा अब देखो मेरी बात सुनो
क्वेश्चन तो ये है, हमने उसको पहले तो डीवाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लिया, डीवाई बाई डी एक्स के फॉर्म में लाना तो आप लोगों को आता है साइंस के बच्चों। फिर हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करवाया, 1/y/x² और ब्रैकेट नीचे x/x² और ब्रैकेट तो जो है वही है। ओके, एक x को ऊपर न्यूमरेटर की बात करो तो 1y/x को y/x दे दिया और एक 1/x को अंदर मल्टीप्लाई करवा लिया। इससे होगा क्या, ये x कैंसिल होगा, ये y/x के फॉर्म में आ गया। नीचे जो है x डिनोमिनेटर की बात करो, x और x कैंसिल, 1/x बचा और 1/x को ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा लिया तो y/x और x कैंसिल हो गया। फिर तो पता ही है कि y/x को v माना और dy बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स आती है और हमने अपनी अपनी जगह पे वो सब चीजें डाल दी। चलो अब हम यहाँ से आगे बढ़ें तो x डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा ये v जो अंदर गरीब जो है उसको मल्टीप्लाई करवा तो v कॉस v प्लस v इंटू वी स्क्वायर साइन v डिवाइडेड बाय v साइन v माइनस कॉस v, और ये प्लस v उधर जाएगा तो माइनस v होगा। यहाँ पे कुछ ना, सबका मालिक एक और ब्रैकेट का एलसीएम, तो ब्रैकेट ही आएगा एलसीएम तो v साइन v माइनस कॉस v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v। अरे जगह ही नहीं है यार, कहाँ लिखूं बोलो, मैं कहाँ लिखूं, कहाँ, कितने छोटे राइटिंग लिखूं। ओके, मेरी आवाज आ रही है, अभी फोन नहीं उठा रहा हूँ, सर है आवाज इम्पोर्टेंट है। हाँ ठीक है, तो मैं बहुत छोटे राइटिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं लिखूंगा x इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो v साइन v माइनस कॉस v कॉस v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v के साथ पूरी एलसीएम लोगे तो यहाँ पे जो माइनस v है न्यूमरेटर में उसके साथ ये ब्रैकेट मल्टीप्लाई होगा तो माइनस v अंदर मल्टीप्लाई करवा तो माइनस v इंटू वी साइन v माइनस माइनस प्लस v कॉस v। आप देखोगे कि वी स्क्वायर साइन v माइनस वी स्क्वायर साइन v कट हो जाएगा, implies x इंटू डी वी बाई डी एक्स, v cos v प्लस v cos v 2v cos v डिवाइडेड बाई v साइन v माइनस cos v। चलो अब वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा और क्या, तो होगा क्या कि यहाँ का जो डिनोमिनेटर वो वहां पे जाएगा तो न्यूमरेटर बन जाएगा, यानी कि होगा v साइन v माइनस कॉस v डिवाइडेड बाई 2v cos v इक्वल्स टू dx उधर x नीचे। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया तो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ द साइड, पहले एलसीएम स्प्लिट करवा लेते हैं। चलो तो इंटीग्रेशन v साइन v अपॉन 2v cos v dv माइनस इंटीग्रेशन cos v अपॉन 2v cos v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x। v कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे cos v कैंसिल हो जाएगा, यानी इंटीग्रेट हाफ भार कांस्टेंट 1 अपॉन cos v यानी कि sec v dv इज इक्वल टू नहीं माइनस माइनस हाफ भार 1 अपॉन v dv इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ dx बाय x। sec v का इंटीग्रेशन क्या आएगा आयुषी, इंटीग्रेशन ऑफ sec v क्या आएगा,
कुछ आएगा? अरे हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, माई मिस्टेक। आप लोग बोल भी नहीं हो कि सर ये मिस्टेक हो रही है। साइन वी अपन कॉस वी बचेगा ना, तो टेन वी आएगा, टेन वी आएगा, साइन अपन कॉस टेन आएगा। अच्छा, इंटीग्रेशन ऑफ टेन वी क्या आएगा? इंटीग्रेशन ऑफ टेन वी जो है लॉग सेक वी आएगा। कुछ फॉर्मूला याद नहीं है आप लोगों को। माइनस सर हाफ मेरे को लगा सर आप आयुषी से पूछ रहे हो, इसीलिए मैं नहीं बोला कुछ। और हाफ इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन वी डी वी विल बी लॉग वी, और इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स विल बी लॉग एक्स, और एक्स से ज्यादा लॉग है तो लॉग सी लिख लेंगे कन्वीनियंस के लिए, लॉग सी लिख लेंगे, ठीक है। अब इसको यहाँ से आप लोग सजा धजा के फाइंड मस्त उसको बराबर कंप्लीट कर लो। लॉग को कॉमन निकालो, माइनस हो रहा डिवाइड होगा, और प्लस हो रहा है तो मल्टीप्लाई में होगा, और वी की जगह पे वाई बाय एक्स डाल लो। बराबर है, 2 मिनट में आया, मैं 2 मिनट में आया, ठीक है। बोलो, समझ में आया कि कंप्लीट करा लूँ? आ गया सर। हाँ, और एक मिनट, राज ने कुछ लिखा है, ये कॉस्वी का ही का आया। राज, तू बोलना भाई, तू बोल भाई, तू इस तरह से लिखा मत कर, कंफ्यूज होता है। इंटरेस्टिंग करवा गया શું ઇન્ટરેસ્ટિંગ કરવા ગયો? શું કહે છે? इंटरेस्टिंग ड्रेसिंग कैसे कैसे बीच में छोड़ के चला गया? से डॉक्टर પાસે જવાનું હતું એટલે તો મને કિયા વગર કેમ ચાલો જાય રીતના? તો ગૂગલ મીટ પર એમ કે મેસેજ નહીં થતા એટલે લે હમણાં મેસેજ કરું ને મેં, જો હા હાય આ મેસેજ થયો, લે સર આઈ તો છે. એનાથી નહીં થતા મેં શું કરું એવું કેવું બને? એવું થોડી હોય કે ના, એટલે એવું કે મોબાઈલ એકદમ આદમ જમાનાનો છે કે નહીં થતો? મને ના સમજ પડી. પાગલ છે એ તો મોકલે એને એને બોલતા બોલતા બંધ થઈ જાય છે, કે બોલાતું નથી, લખતા લખતા નથી લખાતું, તો એવું કઈ સમજ નથી પડતી મને આ વસ્તુ, એમ કેમ થઈ રહ્યું છે? ચલો કઈ નહીં, તો હવે આને વી ની જગ્યા પર વાય બાય એક્સ લખશું, બરાબર, અને પછી તમે એને બરાબર રીતના શું કરશો? વર્કિંગ રૂલ ઓફ લોગ લગાવીને એને ફાઇનલ આન્સર લાવવાની કોશિશ કરજો, ત્યાંથી તમે કમ્પ્લીટ કરજો. હવે નેક્સ્ટ
हाँ 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 8 અને 9 હોમવર્ક આપું છું. Question number 8 Okay. and question number 9 in homework. Question number 10. One plus e raised to x by y into dx plus e raised to x by y into 1 minus x by y dy is equal to 0. અને એક મિનિટ, બીજું કે તું ડ્રેસિંગ કરાવવા ગયો છે રાજ? ઓકે ચલો ચલો ભાઈ. હવે જો આદિત્ય પંકજ ને આયુષી ધ્યાન આપો. યા છે ને એમ નથી કે y by x નથી, ત્યાં શું બતાવે છે લોકો? x by y બતાવે છે. यानी कि पूरा फंक्शन છે ને y થી ડિવાઈડ થાય, ના કે x થી ડિવાઈડ થાય છે. यानी कि આપણે હવે યા dy by dx નહીં લઈએ, આપણે શું લેશું? dx by dy લેશું. યા આપણે dx by dy લેશું. શું કામ? કારણ કે આખો ફંક્શન y થી ડિવાઈડ થાય છે એટલે. શું કામ y થી ડિવાઈડ થાય છે એટલે યાદ રાખજો આ, બરાબર? એટલે હર વખતે જરૂરી નથી ડિફરન્શિયલ ઇક્વેશનમાં કે તમે હંમેશા dy by dx જ કરો. dx by dy પણ આવી શકે, ડિપેન્ડિંગ કે ફંક્શન કેવો છે એના પર ડિપેન્ડ કરે. યા y થી ડિવાઈડ થાય છે એટલે દિમાગમાં ઉતરી ગયું આ વસ્તુ? મેં શું કહેવા માંગુ છું? કન્फ्यूजन છે કે એના અંદર તો કહું? नो सर. y से डिवाइड हो रहा है तो हम क्या करेंगे? y से डेरिवेट करेंगे. y से डिवाइड हो रहा है तो y से डेरिवेट करेंगे. बहुत सिंपल सा मतलब है, लॉजिक समझ. अब तो हमें उसको dx by dy के फॉर्म में नहीं लाना है, अरे dx by dy के फॉर्म में लाना, dy by dx के फॉर्म में नहीं लाना. चलो ठीक है, तो क्या करेंगे? 1 plus e raised to x by y into dx अपनी जगह पे, और इसको उधर भेज दो तो प्लस बिकम्स माइनस, माइनस e raised to x by y into 1 minus x by y dy, ऐसा होगा. इम्प्लाइज dx अपनी जगह पे dy को नीचे भेज दो, e raised to x by y 1 minus x by y अपनी जगह पे रहेगा, और ये टर्म वहां पे डिवाइड होगा तो 1 plus e raised to x by y. अब आप यहां से करेंगे कि लेट x by y equals to v, उसको उधर भेज दो, यानी x is equal to y into v, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y ऑन बोथ द साइड, यानी कि dx by dy equals to y का डिफरेंशिएशन y से करोगे तो 1 आएगा, तो v 1 जा v प्लस y as it is, implicit function rule dv by dy. चल तो अब dx by dy की जगह पे हम डालेंगे ये महासाई को, और x by y की जगह पे हम क्या डालेंगे? x by y की जगह पे v डालेंगे. चलो तो इम्प्लाइज dx by dy की जगह पे डालेंगे v plus y dv by dy is equal to minus e into x raised to y. x raised to y क्या है? v into 1 minus e raised to, नहीं e नहीं है, x by y है, सॉरी. x by y क्या है? v है, डिवाइडेड बाय 1 plus e raised to x by y. x by y क्या है? v है. चलो ये v को उधर भेज दो तो माइनस हो जाएगा, तो y इंटू dv by dy इज इक्वल टू माइनस e रेस टू v इंटू 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस e रेस टू v, प्लस v उधर जाएगा तो माइनस v हो जाएगा,
take the LCM. Implies y into dv by dy is equal to minus e raised to v into 1 plus v minus v into 1 plus e raised to v divided by 1 plus e raised to v implies y into dv by dy माइनस ई रेस टू वी को उधर अंडर ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करवा लो तो माइनस ई रेस टू वी माइनस ई रेस टू वी इंटू वी माइनस वी अंदर मल्टीप्लाई करवा लो माइनस वी इंटू ई रेस टू वी डिवाइड बाई 1 प्लस ई रेस टू वी कुछ भी कट नहीं हो रहा है कुछ कट हो जाता तो मजा आ जाती क्या कहते आदित्य बराबर ना हाँ सर वही ना कुछ भी कट नहीं हो रहा कुछ भी नहीं ऐसा कैसे है कोई गड़बड़ झाला लगता है कुछ गड़बड़ झाला लगता है मेरे को कुछ तो कट होना चाहिए हाँ तो वही तो कुछ कट नहीं हो रहा है मैं वही सोच रहा था गड़बड़ झाला है ये वन माइनस वी है और हमने लिखा था 1 प्लस वी 1 माइनस वी है आयुषी क्या किया आपने ये और माइनस ई रेस टू वी अंदर मल्टीप्लाई कराओ तो ये प्लस हो जाएगा तो ये दोनों कट हो जाएंगे लाइक टर्म्स प्लस माइनस में लाइक टर्म्स कट हो जाएंगे यानी इम्प्लाइज dv by dy इज इक्वल टू माइनस से साइन कॉमन निकालो तो अंदर बचेगा v प्लस ई रेस टू वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई रेस टू वी उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लाने के लिए तो 1 प्लस ई रेस टू वी डिवाइड बाई वी प्लस ई रेस टू वी dv अपनी जगह पे माइनस अपनी जगह पे dy उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और y जो है नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा चल तो हम मान के चलेंगे कि लेट v प्लस ई रेस टू वी को हम कुछ मान के चले z तो v का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1 ई रेस टू वी का डिफरेंशिएशन क्या होगा ई रेस टू वी dv इज इक्वल टू क्या हो जाएगा dz हो जाएगा यानी कि अब समझ लो देख लो अब यहाँ पे कि ये ऊपर वाला जो है ये इतना पार्ट dv 1 प्लस ई रेस टू वी इंटू डी जो है वो dz हो जाएगा और नीचे जो डिनोमिनेटर है v प्लस ई रेस टू वी वो z हो गया ठीक है तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन dz अपॉन z इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई y इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन z क्या होगा log mod z इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ या भी log mod y प्लस log mod x log mod c सॉरी अब ये भाई को उधर भेज दो ठीक है तो माइनस बिकम प्लस तो log mod z प्लस log mod y लॉग कॉमन निकालेंगे कितना होशियार है तो कितना तो log कॉमन निकालो तो प्लस मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा z इंटू वाई इज इक्वल टू log c log log दोनों साइड पर से कट हो जाएगा z क्या है v प्लस ई रेस टू वी ब्रैकेट में लिखो क्योंकि बाइनोमियल मल्टीप्लाई बाय वाई इज इक्वल टू सी लेकिन y v क्या है x बाई वाई तो x बाई वाई प्लस ई रेस टू v की जगह पे x बाई वाई इंटू वाई इज इक्वल टू सी एलसीएम ले लो तो x प्लस वाई इंटू ई रेस टू एक्स बाई वाई डिवाइडेड बाई वाई मल्टीप्लाई बाई वाई इज इक्वल टू सी ढिचकियाओ एंड ढिचकियाओ implies x plus y into e raised to x by y is equal to c. It is your final answer. डाउट हो तो बोल लो
नो डाउट सर। नो डाउट सर। वेरी गुड। आयुषी बेन, नो डाउट सर। पक्का? देखो नहीं बोल रहे हो तो नहीं, दिल बराबर मतलब में बिंदास बोलना, समझ में नहीं आया तो बोल लो। यस चलो आ गया सर। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 से देखोगे आप, तो क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक के सम्स जो है वो पर्टिकुलर सॉल्यूशंस के हैं। क्यों पर्टिकुलर सॉल्यूशन है? क्योंकि यहाँ पे y और x की वैल्यू उन्होंने दी हुई है, तो हमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं, इसलिए उसको पर्टिकुलर सॉल्यूशन कहेंगे। करना तो वही है बराबर, सिर्फ x और y की वैल्यू, एंडिंग में x और y की वैल्यू डाल के हमें c की वैल्यू लेके आनी है, एज सिंपल एज दैट। चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, चलो नया पेज ले लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11, x प्लस वाई इंटू टी वाई प्लस x माइनस वाई इंटू डी एक्स इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। y इक्वल टू 1 है, x इक्वल टू भी 1 है, ऐसा वो लोग कह रहे हैं। चलो तो कहने दो, और क्या कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स लेके आओ तो क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, उधर भेजेंगे तो माइनस एक्स माइनस वाई डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई। समझ में आ रहा? ये इसको उधर भेजो, फिर इसको इधर भेजो, और हाँ वापस सर, उधर करो डिवाइड तो में, हाँ ये सर। ओरिजिनल आ जाएगा, ये ओरिजिनल आ जाएगा, ठीक है ना। तो मैंने उसको क्या किया, अलग अलग कर दिया और dy बाई डी एक्स के फॉर्म में लेके आ गए। अब हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाई एक्स, डिवाइडिंग numerator and denominator by x। तो dy by dx equals to minus x by x 1 minus y by x divided by x by x 1 y by x। let y by x is equal to v, उसको उधर भेज दो, यानी कि y equal to x into v, differentiating respect to x on both the sides। तो dy by dx equals to x का डिफरेंशिएशन 1, v as it is, x as it is, implicit function rule dv by dx। तो dy by dx की जगह पे समझ में आ गया होगा कि इतने सारे कसम हो गए अपने, और y by x की जगह पे v डालेंगे। चलो तो dy by dx की जगह पे हम डालेंगे v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी। चलो ये v को उधर भेज दो, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी अपॉन 1 प्लस वी माइनस वी। एलसीएम ले लो, तो x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस वी इंटू 1 माइनस वी इंटू प्लस वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। चलो तो इम्प्लाइज x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 2v माइनस वी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस वी। बोलो यहाँ तक कोई डाउट हो तो मेरे को बोलो। नहीं सर, अभी तक आपको वापस एक मिस्टेक हुई है, सिली मिस्टेक। यहाँ पे बाहर माइनस की साइन है ना, तो यहाँ पे हमने बाहर माइनस की साइन यहाँ पे है, वो हमने यहाँ पे लिखना भूल गए थे, माइनस की साइन है। तो ये माइनस के अंदर जाएगी तो ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा। चलो तो इससे क्या होगा, ये प्लस वी और माइनस वी कट हो जाएगा, तो हमें ये ट्राइनोमियल नहीं मिलेगा, बाइनोमियल ही मिलेगा। चलो इजी हो जाएगा, ये 1 माइनस वी स्क्वायर होगा।
-1 माइनस वी स्क्वायर होगा, -1, ये -1 है ना, -1 है। चलो तो अब उसको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में लेके आए, कैसे लेके आएंगे, 1 + v को उधर भेज दो, न्यूमरेटर में चला जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस की साइन कॉमन निकाल के 1 + वी स्क्वायर को नीचे भेज दो, माइनस की साइन यहाँ पे बाहर कॉमन निकली है, dx को उधर भेज दो, न्यूमरेटर में चला गया, x डिनोमिनेटर में चला जाएगा, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया। वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गया तो हम इंटीग्रेट उसको कर सकते हैं। अब एलसीएम स्प्लिट करवा लो यहाँ पे, तो ये होगा 1/1 + वी स्क्वायर डीवी प्लस v इंटीग्रेशन v/1 + वी स्क्वायर डीवी इज इक्वल टू माइनस dx/x। चलो इसकी फॉर्मूला तो हो गई, और रही बात यहाँ पे बात करें तो ये होगा कि लेट 1 + वी स्क्वायर इक्वल्स टू z, यानी कि 2v dv इक्वल्स टू dz, यानी कि v dv इज इक्वल टू हाफ dz, यानी v dv की जगह पे मैं क्या लिखूंगा, हाफ dz लिखूंगा। और ये तो फॉर्मूला है ही 1/a tan इनवर्स x/a की फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस हाफ इंटू 1/1 + वी स्क्वायर को क्या माना, z माना, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/z dz इज इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ dx/x implies tan इनवर्स v प्लस हाफ 1/z dz की इंटीग्रेशन होगा log mod z इज इक्वल टू माइनस log x प्लस c लिखना तो c लिख सकते हो, और log c लिखना तो log c लिख सकते हो। चलो log c लिख लेते हैं। लेकिन z क्या है, 1 + वी स्क्वायर, यहाँ पे z की जगह पे मैं क्या डालूंगा, उसी ध्यान दे रहे हो तो अच्छा है भाई, बराबर 1 + z की जगह पे क्या डालेंगे, z की जगह पे डालेंगे वापस 1 + वी स्क्वायर, implies tan इनवर्स v प्लस हाफ log z, लेकिन z है 1 + वी स्क्वायर इज इक्वल टू log x माइनस log x प्लस c। लेकिन v क्या है, y/x, बराबर v क्या है, y/x, v की जगह पे डालेंगे y/x वी स्क्वायर है, यानी y²/x²। अब वो यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हो, लॉग कॉमन निकाल सकते हो, ये आपका फाइनल आंसर। बोलो डाउट हो तो पूछो। No doubt, sir. यादव, ओ यादव, पंकज का पंकज चला गया। हाँ हाँ, ये तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन करना है ना, अभी शाम बाकी है, सॉरी। हाँ सर, yx की वैल्यू तो अब x की वैल्यू क्या बोली थी, x और y दोनों की वैल्यू 1, तो x की वैल्यू भी 1 है, y की वैल्यू भी 1 है, तो tan इनवर्स 1/1, tan इनवर्स 1 प्लस हाफ log 1 + y²/x² 1 + 1 y/1 इज इक्वल टू माइनस log 1 प्लस log c। tan इनवर्स 1 की वैल्यू क्या आएगी, π/4 log हाफ log 2
log 1 की वैल्यू 0 हो जाएगी, इज इक्वल टू 0 प्लस log c, बराबर। तब log c की जगह पे हम डालेंगे π/4 प्लस हाफ log 2, यानी कि therefore particular solution is tan inverse y by x plus half log 1 plus y square by x square is equal to minus log c, sorry, is equal to minus log x plus log c, लेकिन log c क्या लेके आया है, π/4 प्लस हाफ log 2। ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। अगर इसमें कोई डाउट हो तो मुझे बोलो। नो सर। सर नो डाउट। बस तो यहाँ पे रुकते हैं, नेक्स्ट सम करेंगे, ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, नया पैटर्न शुरू करेंगे, ठीक है। यस जो होमवर्क Okay, दिया sir. वो मुझे भेजो, ठीक है। सर। हाँ सर, ओके, थैंक यू, बाय सर। बाय सर। बाय सर।